السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ان خبروں کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ڈائنامک سکسیس دا جونیئر کالج، اپوزٹ مادنا پیٹ منڈی، سعید آباد، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 04029701124 اینڈ انسٹیٹیوٹ آف سکسیس اسکولز۔ دلتوں کے حضور نگر میں تائید حاصل کرنے پرگتی بھون میں چیف منسٹر کا اجلاس۔ حضور آباد سے 400 سے زائد دلت مرد و خواتین مدعو۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کام، گورنر تمل سائی سندرا راجن کی ریڈ کراس سوسائٹی کو ہدایت۔ بارش سے ذخائر آب پر، صورتحال پر نظر، پولیس چوکس۔ VC سجنار IPS کا حمایت ساگر اور عثمان ساگر کا دورہ۔ تلنگانہ کے وزیر تارک راما راؤ 45 سال کے ہو گئے۔ تارک راما راؤ کو مختلف افراد کی جانب سے سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر مبارکبادی کا سلسلہ جاری۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع بدستور بارش کی زد میں، فوجی ہیلی کاپٹرز کا استعمال۔ وزراء اور عہدیداروں سے چیف منسٹر KCR کا رابطہ۔ نشیبی علاقوں سے عوام کی منتقلی کی ہدایت۔ چھتیس گڑھ کا راستہ بند ہو گیا۔ ایرو اسپیس اور دفاعی شعبوں میں تلنگانہ ملک کی سرگرم ریاست، دونوں شعبوں کو حکومت کی جانب سے کافی اہمیت دینے ریاستی وزیر KTR کا دعویٰ۔ تلنگانہ بھون تقررات میں تلنگانہ والوں سے ناانصافی، دہلی میں طلبہ کا احتجاج، کنڈا وشویشور ریڈی کی تائید حاصل۔ نئے ہندوستان میں ہندوتوا کے لیے کوئی جگہ نہیں، سب کا DNA ایک ہے تو گنتی کی کیا ضرورت؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی کا موہن بھاگوت سے استفسار۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madana Pet Mandi, Saeed Abad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. جرمنٹن ہاسپٹل، آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکالوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ میں موسلادھار بارش کے نتیجے میں کئی اضلاع کے لیے سیلاب کا خطرہ ابھی بھی برقرار ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ نہ صرف ہائی الرٹ چوکسی برقرار رکھیں بلکہ امدادی کاموں کے لیے فوجی ہیلی کاپٹرز کا استعمال کریں۔ موسلادھار بارش کے نتیجے میں ریاست کے تقریباً تمام آبپاشی پروجیکٹس میں پانی کی سطح میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ گوداوری اور کرشنا دریاؤں کے پروجیکٹس میں پانی کی نکاسی کے سبب کئی موضوعات زیر آب آ چکے ہیں۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ متاثرہ اضلاع کے ضلع کلیکٹرز اور وزراء سے مسلسل رابطے میں ہیں اور انہوں نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے صورتحال کو معمول پر لانے کے اقدامات کی ہدایت دی ہے۔ وزیر IT و صنعت KTR نے واضح کیا ہے کہ تلنگانہ حکومت ایرو اسپیس اور دفاعی شعبوں کو زیادہ ترجیح دیتی ہے اور ساتھ ہی ان شعبوں میں تلنگانہ ملک کی سب سے زیادہ سرگرم ریاست کے طور پر ابھری ہے۔ ہوٹل تاج کرشنا میں ٹاٹا بوئنگ کی 100ویں اپاچی پیوجلیج ڈلیوری تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ تاحال 100 اپاچی ہیلی کاپٹرز پیوجلیج حصوں کا ٹاٹا کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اپاچی پیوجلیج ڈلیوری تقریب میں KTR نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ وزیر صنعت نے کہا ہے کہ حکومت کی ترقیاتی پالیسیوں اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے ساتھ ایرو اسپیس اور ڈیفنس شعبوں میں گزشتہ 5 سال کے دوران بڑے پیمانے پر ترقی حاصل کی۔
साथ ही कीमतों के तयन के मामले में हैदराबाद में एरोस्पेस और डिफेंस शोबों में FDI और फ्यूचर एरोस्पेस सिटीज के रैंकिंग 2020 में आलमी सतह पर सर-ए-फहरिस्त मुकाम हासिल किया। दहली के तेलंगाना भवन में तकर्रुरात के तरीक़ेकार के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तेलंगाना भवन में अम्बेडकर मुजस्समे के रूबरू एहतजाज करने वाले तलबा ने इल्जाम आयद किया कि रेसिडेंट कमिश्नर तेलंगाना भवन ने एक तरफा फैसला करके तकर्रुरात किए हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना भवन को नॉर्थ इंडिया भवन में तब्दील किया जा रहा और तेलंगाना तलबा से तकर्रुरात में नाइंसाफी की गई है। तलबा ने कमिश्नर की फौरी बरतरफी का मुतालबा किया। इसी दौरान साबिक़ रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने एहतजाजी तलबा से बातचीत की और इजहार यगांगियत किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भवन दिल्ली में 74 मुलाजमीन हैं, जिनमें से 4 का ताल्लुक तेलंगाना से है, जबकि बाकी आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों से ताल्लुक रखते हैं। विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के नौजवानों ने रोजगार में इंसाफ के लिए जद्दोजहद की थी, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद नाइंसाफियों का सिलसिला जारी है। नए हिंदुस्तान में हिंदुत्व के लिए कोई जगह नहीं है। जब हमारा DNA एक है तो गिनती क्यों की जा रही? रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने RSS सरबराह मोहन भागवत के मुसलमानों की आबादी में मुनज़्ज़म अंदाज में इजाफे के बयान पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि संघियों को दिमाग नहीं है और वो 100% नफरत की बुनियाद पर बाकी जो के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना ही जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर मोहन भागवत के बयान पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि 1950 से 2011 के दरमियान अगर मुसलमानों की आबादी का जायजा लिया जाए तो इसमें गिरावट रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए मोहन भागवत की जानिब से दिए गए बयान की मजम्मत करते हुए भागवत के चंद हफ्तों कबल दिए गए बयान का हवाला दिया और कहा कि जब भागवत कह रहे हैं कि तमाम हिंदुस्तानियों का DNA एक ही है तो फिर गिनती क्यों की जा रही है? RSS सरबराह ने गुज़िश्ता दिनों गुवाहाटी में एक किताब की रस्म इजरा के मौके पर अपने खिताब के दौरान कहा था कि हिंदुस्तान में 1930 से मुनज़्ज़म अंदाज में मुसलमानों की आबादी में इजाफा किया जा रहा। असदुद्दीन ओवैसी ने उनके इस बयान को नफरत अंगेज करार देते हुए कहा कि चंद हफ्तों कबल दिए गए बयान के बाद भागवत की संघी छवि मुतासिर हुई थी और अब इस नफरत पर मबनी बयान के जरिए वो मुखालिफ मुस्लिम जहर उगल रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने संघ को मुसलमानों के खिलाफ नफरत का आदी करार देते हुए कहा कि हिंदुत्व के नाम पर जिस अंदाज में नफरत फैलाई जा रही उसकी मॉडर्न हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं। हुजूरनगर असेंबली हलके के ज़िमनी चुनाव में दलितों की ताईद हासिल करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर हुकूमत ने नई ऐलान करदा दलित बंधु स्कीम पर शौर बेदारी इजलास प्रगति भवन में तलब किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 26 जुलाई को इजलास की सदारत करेंगे। ये पहला मौका है जब किसी तबके के लिए स्कीम के ऐलान के बाद शौर बेदारी के नाम पर प्रगति भवन में इजलास मुनक्किद किया गया हो। इजलास में स्कीम पर अमलावरी के एक्शन प्लान को खतैयत दी जाएगी। हुकूमत हुजूराबाद से स्कीम के आगाज का मंसूबा रखती है। शौर बेदारी इजलास में हर गाँव से 4 अफराद, हर वार्ड से 4 अफराद को मतऊ किया जाएगा और जुमला 412 दलित मर्द व खवातीन प्रगति भवन के इजलास में शिरकत करेंगे। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटीज के अहदेदारों और वॉलंटियर्स को हिदायत दी कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में चौकसी अख्तियार करते हुए मुतासरीन की मदद करें। गवर्नर ने राजभवन पडुचेरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अहदेदारों से बातचीत की। उन्होंने राजभवन और हैदराबाद के अहदेदारों से रियासत में बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर तफसीलात हासिल की। गवर्नमेंट ने इमलाक और फसलों की बड़े पैमाने पर तबाही और नशेबी इलाकों में नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने राजभवन के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए मुतासरीन की मदद के लिए रियासती हुकूमत के अहदेदारों के साथ मिलकर काम करें। Please concentrate on the targeted groups also, elderly people who are in need of not only other relief material but also the medical help. Whatever is needed, Red Cross can do that, and whatever maybe the assistance from Raj Bhavan can be rendered. शहर में जारी बारिश के सिलसिले और तरक्की ज़खायर आब हिमायत सागर और उस्मान सागर में पानी के बहाव का जायजा लेने के लिए कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सज्जनार हिमायत सागर पहुंच गए। उन्होंने अहदेदारों के हमरा हिमायत सागर और उसके नशेबी इलाकों के अलावा गुज़िश्ता में मुतासरा इलाकों के हालात का जायजा लिया। पानी के मुसलसल बहाव के सबब तरक्की ज़खायर आब हिमायत सागर और उस्मान सागर के दरवाजे खोल देने से और मूसा नदी में पानी के बहाव के सबब नशेबी इलाकों और यहाँ मौजूद आबादी को चौकसी
चौकस कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने हिमायत सागर के अलावा पल्ले चेरू, अपा चेरू का भी जायजा लिया और आवाम को यकीन दिलाया कि पुलिस 24 घंटे चौकस रहेगी। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो बारिश और पानी के बहाव के दौरान अपने मकानात से बाहर ना निकलें और किसी भी किस्म की परेशानी पर साइबराबाद पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 9490617444 और डायल 100 पर इतला दें। तेलंगाना के वज़ीर तारक रामाराव 45 साल की हो गए हैं। तारक रामाराव को मुख्तलिफ अफराद की जानिब से सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आज सालगिरह की मुबारकबाद के पयामात का सिलसिला चल पड़ा है। इसी दौरान फिल्म अदाकार सोनू सूद ने भी तारक रामाराव को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जारी करदा मुबारकबादी के पयाम में उन्हें मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले साल उनके लिए बेहतर साबित हों। साथ ही उन्होंने कहा कि तारक रामाराव से कहा, आपके जज्बाती ख्यालात और विजन हमेशा कई मिलियन अफराद की रहनुमाई करते रहेंगे। आप न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी रियासत के लिए पैदाइशी सुपरस्टार हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 643 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना के 6,40,012 नए केसेस बताए गए हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना से 4 अफराद की मौत हुई, जिसके बाद अब तक के मरने वालों की तादाद 3,778 बताई गई है। आदिलाबाद में 7 कोरोना केसेस दर्ज हुए, वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 19, जीएचएमसी में 77, जगतियाल में 22, जनगांव में 6, जयशंकर भोपालपल्ली में 6, जोगुलांबा गदवाल में 4, कामारेड्डी में 2, करीमनगर में 68, खम्मम में 57, कुमरम भीम आसिफाबाद में 2, महबूब नगर में 5, महबूबाबाद में 15, मंचरियाल में 22, मेदक में 5, मिर्चल मलकाजगिरी में 29, मुलुगु में 6, नागर कन्नूल में 6, नलगुंडा में 35, नारायणपेट में 0, निर्मल में 2, निजामाबाद में 9, पेद्दापल्ली में 46, राजन्ना सिरसिला में 17, रंगारेड्डी में 31, संगारेड्डी में 10, सिद्दीपेट में 11, सूर्यापेट में 41, विकाराबाद में 4, वनपर्ती में 3, वरंगल रूरल में 10, वरंगल अर्बन में 54 और यदाद्री भोंगिर में 12 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। सिर्फ सुनहरे ख्वाबों से नहीं बल्कि घर बनते हैं मजबूत इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये करेंगे आपके ख्वाबों को सच। MS टेक्नो एंड कंपनी लेकर आए हैं एक शानदार व नायाब प्रोजेक्ट जिसका नाम है साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, नवाबों के शहर हैदराबाद में, चार मीनार के दामन में, सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर, आजमपुरा फरहतनगर इलाके में, एबिट्स कोठी और मलकपेट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर, ग्राउंड प्लस 5th फ्लोर की बिल्डिंग, जहां आपके लिए 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स हैं दस्तयाब। जकी एंड एसोसिएट्स की जानिब से उम्दा व बेहतरीन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का मायानाज स्ट्रक्चर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी, मस्जिद और प्लेग्राउंड की खरीद, GHMC अप्रूव्ड लोन और इंस्टॉलमेंट की भी सहूलत। बुकिंग शुरू है तो देर न करें और मजीद तफसीलात के लिए कांटेक्ट करें 9959023786 या फिर 9505321920 पर। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हिमायत सागर और उस्मान सागर से अचानक पानी के अखराज को रोकने और मनसूबाबंद अंदाज में पानी के अखराज को यकीनी बनाने
प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दीनस मुनस्क अरविंद कुमार ने हिमायत सागर व उस्मान सागर का मुतल्लिका ओहदेदारों के हमरा मुआयना किया। उनके साथ दाना किशोर, मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। अरविंद कुमार ने इन ज़खायर आब से पानी के अखराज का मुआयना करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत के बाद दोनों ज़खायर आब में जमा पानी और खारिज होने वाले पानी की मकदार का जायजा लेने के बाद अखराज को बेहतर बनाने इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने अपने एक ट्वीट के जरिए बताया कि इन ज़खायर आब से अचानक पानी के अखराज के मुस्तकबिल में फैसला न करना पड़े, इसीलिए उनमें जमा पानी के और ज़खायर आब की सतह आब मुकम्मल होने का जायजा लेते हुए मंसूबा तैयार किया जाना जरूरी है। हुकूमत ने 20 नवंबर को तेलंगाना स्टेट शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सदरनशीन मुकर्रर किया। सेक्रेटरी महकमे एससी डेवलपमेंट राहुल बोजा ने GOMS 8 जारी किया। श्रीनिवास को फौरी असर के साथ 1 साल की मुद्दत के लिए सदरनशीन के ओहदे पर मुकर्रर किया गया है। श्रीनिवास का ताल्लुक करीमनगर के हुजूराबाद असेंबली हल्के से है। उन्होंने स्टूडेंट लीडर की हैसियत से अपने सियासी करियर का आगाज किया था। मरकजी हुकूमत ने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बशमूल 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर का तकर्रुर किया है। डॉक्टर बी जगदीश्वर राव को यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तकर्रुर के अहकाम जारी किए। जगदीश्वर राव फिलवक्त तिरुपति में IISER के डेन के ओहदे पर फाइज हैं। उन्होंने कई तालीमी इदारों में अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। वो 2007 में USA में फुल ब्राइट विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। अमेरिकी यूनिवर्सिटी से बायोलॉजिकल साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। डॉक्टर जगदीश्वर राव आइंदा 5 साल तक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वाइस चांसलर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। सैयद ऐनुल हसनैन को मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। ऐनुल हसनैन देहरादून वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर ऐनुल हसनैन ने कई तालीमी इदारों में नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। सदर जमहूरिया ने कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से प्रोफेसर बी सत्यनारायण का तकर्रुर किया है। मुल्क में 22 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के ओहदों पर तकर्रुरात मुकम्मल हो चुके हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। दलितों के हुजूर नगर में ताईद हासिल करने प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर का इजलास। हुजूराबाद से 400 से ज्यादा दलित मर्द व खवातीन मदऊ। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी काम। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरा राजन की रेड क्रॉस सोसाइटी को हिदायत। बारिश से ज़खायर आबपुर सूरत-ए-हाल पर नजर, पुलिस चौकस। VC सजनार IPS का हिमायत सागर और उस्मान सागर का दौरा। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव 45 साल के हो गए। तारक रामाराव को मुख्तलिफ अफराद की जानिब से सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मुबारकबादी का सिलसिला जारी। तेलंगाना के कई अजला बदस्तूर बारिश की जद में फौजी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। वुज़रा और ओहदेदारों से चीफ मिनिस्टर KCR का राब्ता। नशेबी इलाकों से अवाम की मुंतकिली की हिदायत। छत्तीसगढ़ का रास्ता बंद हो गया। एरोस्पेस और दिफाई शोबों में तेलंगाना मुल्क की सरगर्म रियासत। दोनों शोबों को हुकूमत की जानिब से काफी अहमियत देने रियासती वजीर KTR का दावा।
तेलंगाना भवन तकर्रुरात में तेलंगाना वालों से नाइंसाफी, दिल्ली में तलबा का एहतजाज, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी की ताईद हासिल। नए हिंदुस्तान में हिंदुत्व के लिए कोई जगह नहीं, सबका डीएनए एक है तो गिनती की क्या जरूरत, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मोहन भागवत से इस्तिफसार। इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।